السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شکیل احمد ہے اور السلام علیکم، میرا نام سید حسن رضا ہے. آج کی یہ ویڈیو ان سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور اس سے آگے اپنی اسٹڈیز کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. انڈر گریڈ ڈگری کے لیے ایک ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہاں پر. اس ٹیسٹ کا نام ہے SAT. اس کو بعض لوگ پاکستان میں SAT بھی کہتے ہیں. کہ میرا نہیں خیال کہ یہاں کوئی انڈر گریڈ اسٹوڈنٹ آئے اور اس کو یونیورسٹی کچھ نہ دے. انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس کے بارے میں صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے لیے تعلیمی مواقع تو کھلے ہیں. آنٹی تھی ان کے 2 بچے تھے، ایک نام تھا اور ایک نام تھا. تو جب کلاتی آتا تھا کلاتی Here comes the rain and to wash me away, a tide that is taking me under, swallowing sand left with nothing to say, my voice from down in the thunder, but I won't cry, I'll start to crumble, when now they try to shut me and cut me down, I will be silent, you can keep me quiet, won't tremble when you crying, all I know is I won't go speechless, 'cause I'll breathe when they try to suffocate me, don't you underestimate me, 'cause I know that I won't go speechless. Written in stone, every rule, every word, centuries old and unbending, stay in your place, better seen and not heard, but now that story's ending, 'cause I can't start to crumble, so come on try to shut me and cut me down, I will be silent, so you can keep me quiet, won't tremble when you trying, all I know is I won't go speechless, speechless to let the storm in, I cannot be broken, no I won't live unspoken, 'cause I know that I won't go speechless. Try to lock me in this case, I won't just lie me down and die, I will take these broken wings and watch me burn across the sky, hear the echoes saying I won't be silent, though you wanna see me tremble when you try it, all I know is I won't go speechless, all I know is I won't go speechless, speechless. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں شکیل احمد اور ای لرننگ ٹرینر پلیٹ فارم پہ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. آج کی یہ ویڈیو ان سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور اس سے آگے اپنی اسٹڈیز کو جاری و ساری رکھنا چاہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جیسا کہ اس ای لرننگ ٹرینر پلیٹ فارم کا
बेसिक पर्पस है कि हम यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं और कुछ ऐसी मालूमात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स और एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग आपस में उसको शेयर करते हैं और उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऑक्सफोर्ड, ओहायो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ऑक्सफोर्ड की अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो ऑक्सफोर्ड की हिस्ट्री और मायामी यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री आपस में मुंसलिक है। 1809 में ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई और 1810 के अंदर इसको चार्टर्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया और इसकी वजह से ये लोकेशन जो थी वो थी ऑक्सफोर्ड विलेज में। ऑक्सफोर्ड एक छोटा सा विलेज था और इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई, लोकेशन बहुत बड़ी थी, लोगों ने यहाँ पे ट्रैवल करना शुरू किया, स्टूडेंट्स ने आना शुरू किया, तो यहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ना शुरू हो गई और करते करते 1971 के अंदर ऑक्सफोर्ड को एक सिटी का दर्जा दे दिया गया। लेकिन ऑक्सफोर्ड सिटी बनने के बावजूद एक छोटा सिटी है, एक टाउन है और इन्होंने अपनी जो विलेज की रवायात है उनको बरकरार रखा हुआ है। मैंने जितना भी यहाँ पे मूवमेंट की तो मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत ही वुसअत के साथ इस आबादी को मैनेज किया गया है। कोई कंजेशन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडी नहीं है, बहुत मकान अपने करीब करीब नहीं है और उसी चीज़ का जो सबसे ज़्यादा ब्यूटी है, मैं बहसीत ट्रैवलर भी हूँ तो मैंने स्विट्ज़रलैंड के बाद जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती और ग्रीनिश लश ग्रीन नीट एंड ग्रीन एनवायरनमेंट देखा है वो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड ओहायो में देखा है। एक और चीज़ भी आपको ऑक्सफोर्ड के बारे में बता दूं कि ऑक्सफोर्ड कॉर्न फार्म्स के हवाले से बहुत ज़्यादा जाना जाता है और आपकी मकई की फसल है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे काश्त की जाती है और इसको दूसरी जगहों पे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इसके साथ साथ ये हुआ कि हमने क्यों ये लोकेशन चूज की और क्या रीजन है कि मायामी यूनिवर्सिटी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको ये बता दूं कि मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन सऊदी अरेबिया के साथ मुंसलिक हूँ और टीचिंग के साथ साथ मैं ई लर्निंग ट्रेनर हूँ। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और बाय नेचर मैं टूरिस्ट हूँ, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, स्टोरी राइटर हूँ, वीलॉगर हूँ। मेरी ये कोशिश होती है बहसीत ट्रैवलर कि किसी भी कंट्री का जिस वक्त विजिट करूं तो वहां पे अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का मौका मिले रिलेटेड टू एजुकेशन तो मैं वो अपॉर्चुनिटी लाजमी क्रिएट करता हूं और उसको ग्रैब आउट करता हूं, उसको रिकॉर्ड करता हूं और आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूं ताकि ना सिर्फ मेरी मालूमात में इजाफा हो बल्कि आप लोगों तक भी वो इंफॉर्मेशन पहुंच सके और आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। अब यहाँ पे मायामी यूनिवर्सिटी तक मैं कैसे पहुंचा? सैयद हसन रजा ऐसी नामवर शख्सियत जिनको मैं बहसीत बड़े भाई और मेंटोर की हैसियत से जानता हूँ, बहुत पुराना इनके साथ ताल्लुक़ है। पाकिस्तान के अंदर भी शोबे तालीम के साथ एक बहुत अच्छी पोस्ट के साथ वाबस्ता हैं और शोबे तालीम में बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी कर चुके हैं। वो मायामी यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी कर रहे हैं और डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये इनका पहला सफ़र नहीं है अमेरिका का, बल्कि इससे पहले भी ये मल्टीपल टाइम अमेरिका आ चुके हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और जो स्पेशलिटी है इनकी वो ये है कि ये अमेरिकन जो कल्चर है उसको स्टडी कर रहे हैं, अमेरिकन लोगों की जो साइकोलॉजिकली उनके करीब होकर ये अंडरस्टैंड करते हैं कि वो लोग कैसे इस चीज़ को ज़िंदगी यहाँ पे कैसे गुजारते हैं और इसके साथ स्टडी ये भी कर रहे हैं कि हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं और अमेरिकन लोग हैं इनकी जो कल्चर है उसमें क्या डिफरेंस है और क्या डाइवर्सिटी है। मैं अभी उनको यहाँ पे दावत दूंगा ताकि वो यहाँ पे आएँ, मेरे साथ थोड़ा सा टाइम गुजारें और जो उनकी मायराना राय है वो आपके साथ शेयर करें। इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद कुछ स्पेसिफाइड वीडियो अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए, फिर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए, फिर स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो मैं हसन भाई को दावत दूंगा कि वो आएँ और अपनी वो एक्सपर्टीज आपके साथ शेयर करें जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता और लोग ये समझते हैं कि अमेरिका के अंदर एजुकेशन हासिल करना स्पेशली फ्रॉम एशियन कंट्रीज इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, या यहाँ पे आप टच ही नहीं करते इस इम्पॉसिबल होने की वजह से, या आपके जहन में ये चीज़ होता है कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इन सारी चीज़ों की डिस्कशन इनके साथ करता हूँ
اور इनसे पूछते हैं कि ये इनका क्या एक्सपीरियंस है तालीम के बारे में और ये क्या समझते हैं कि जो अमेरिका के अंदर तालीम है उसको ये क्या ग्रेड करते हैं और यहाँ पे कौन लोग आ सकते हैं और कौन इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब आउट कर सकते हैं। जी हसन भाई, आप बताइए क्या आपका क्या एक्सपीरियंस है और आपका क्या तजर्बा कहता है और तालीम के बारे में आपकी क्या राय है यहाँ पे और हमारे लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद हसन रज़ा है और मैं मायामी यूनिवर्सिटी ओहायो में पीएचडी की तालीम हासिल कर रहा हूँ। और मैं सबसे पहले तो शकील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ शर्फ़ मेज़बानी बख्शा और ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म से मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं दूसरे तालिब इल्मों को, स्टूडेंट्स को रहनुमाई फराहम कर सकूँ कि कैसे वो अमेरिका में तालीम के सिलसिले को आगे बढ़ा सकते हैं और यहाँ मौजूद मौक़ों को किस तरीके से वो हासिल कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि तालीम के लिए फंड्स का होना ज़्यादा ज़रूरी है या टैलेंट का होना ज़्यादा ज़रूरी है? और हमारे अगर एशियन स्टूडेंट्स को अगर सिर्फ सामने रखा जाए, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को, चाइना के स्टूडेंट्स को, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, इस बारे में मेरी राय जो है वो बहुत ही वाज़ेह है, क्योंकि मैं इस पीएचडी की तालीम से पहले भी अमेरिका से एमएस की तालीम हासिल कर चुका हूँ और वो भी एक स्कॉलरशिप था। और इससे के अलावा मैं 2 दफ़ा दूसरी और यूनिवर्सिटीज़ में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के तहत आ चुका हूँ, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न कोलोराडो शामिल हैं। और इस पीएचडी से पहले जिन 3 प्रोग्राम्स के लिए मैं अमेरिका आया, वो तमाम की तमाम फंडेड प्रोग्राम थे और मुझे उनके लिए अपनी पॉकेट से 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। हाँ, इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भी मैं यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड मुझे मिलता है, लेकिन इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए मुझे सिर्फ एयर टिकट परचेज़ करना पड़ा था। एयर टिकट के अलावा जो मेरे प्रोग्राम की फंडिंग थी वो इतनी सफिशिएंट थी कि जितनी रिक्वायरमेंट मेरे यहाँ पे रहने के लिए जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, उससे ज़्यादा फंड्स यूनिवर्सिटी ने एलोकेट किए हुए थे। Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you laugh at your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over sideways and under on a magic carpet ride, a whole new world. Honey, princess, the point of view. No one to tell us no, or where to go, or say the wrong way to remain. And dazzling place I never knew, but when I way up here, it's crystal clear. But now I'm in a whole new world, leave it both sides. Feeling, soaring, traveling, revealing through an endless diamond sky, a whole new world. अच्छा दोस्तों, हसन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे, कुछ मुश्किल सवाल होंगे, कुछ आसान सवाल होंगे, कुछ इनकी ज़िंदगी के बारे में भी क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ताकि आपको इंतज़ार ना करवाया जा सके, और डायरेक्ट क्वेश्चन मैं इनसे ये करता हूँ कि हसन भाई ये बताएं कि जो आपका सफ़र यहाँ तक का है, पाकिस्तान से आप चले और अमेरिका तक आए और कई बार आए, सिर्फ एक बार नहीं आए, बल्कि ये बताएं कि वो जो आपका सफ़र पाकिस्तान से अमेरिका तक का सफ़र है, वो आसान सफ़र था या मुश्किल सफ़र था, और उसमें कौन कौन से ऐसे स्टेप्स आपने फॉलो किए कि जो हमारे व्यूवर्स भी फॉलो करके आपकी तरह कामयाब हो सकते हैं और यहाँ पे आके अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। जी सर। इस ज़मन में पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले अपने जहन में इस बात को वाज़े कर लें कि
बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आपका टैलेंट है। इसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं, और आपकी कोशिश है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मौके तो तालीम हासिल करने के हमारे अपने मुल्क में भी मौजूद होंगे, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, या कोई भी एशियन कंट्री हो, लेकिन हम तमाम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे ममालिक आबादी के लिहाज से इस सतह पे पहुंच चुके हैं कि वहां पर बाज़ औक़ात हर शख्स को मौके मुयस्सर नहीं आ पाते। जबकि अमेरिका भी एक ऐसा मुल्क है जो अभी आबादी के लिहाज से अगर रकबे के तनासुब से देखा जाए तो इस मुल्क की आबादी इसके रकबे के तनासुब से बहुत कम है। लिहाजा यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में हमेशा बैनुल अक़वामी स्टूडेंट्स के लिए गुंजाइश रहती है, और ये लोग इस बात को पसंद करते हैं कि बैनुल अक़वामी स्टूडेंट्स यहाँ पर आएँ, यहाँ आके तालीम हासिल करें, और यहाँ के लोगों को और यहाँ के जो फैकल्टी मेंबरान हैं उनको ना सिर्फ अपने कल्चर, अपनी सकाफत के मतलब बताएं, बल्कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के मतलब भी इनकी मालूमात में इजाफा करें। जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेड की तालीम के लिए यहाँ आना चाहते हैं, अगर मैं उनका मुवाजना ग्रेड स्टूडेंट्स के साथ करूं, ग्रेड स्टूडेंट्स ज़्यादा स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के मुकाबले में। वो ऐसे कि जो अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स होते हैं वो मायूस ना हों, उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स होंगे, लेकिन वो महदूद दर्जे के हो सकते हैं, कुछ परसेंटेज हो सकती है, और नहीं जानते हम कि हो सकता है कि कोई अंडर ग्रेड स्टूडेंट इतना खुशकिस्मत भी हो कि उसको मुकम्मल स्कॉलरशिप मिल जाए। लिहाजा मैं यहाँ पे आपकी दिल शक्नी नहीं करना चाहूँगा या आपको मायूस नहीं करना चाहूँगा। अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के बारे में सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनके लिए तालीमी मौके तो खुले हैं, ये वो यहाँ आके बिला किसी रुकावट के तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो तालीमी सफ़र को स्कॉलरशिप के साथ जारी रखना चाहते हैं यहाँ पे, तो फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप के मौके ग्रेड स्टूडेंट के हवाले से ज़रा की निस्बत थोड़े से कम होंगे, या उनको कुछ स्कॉलरशिप मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। एक फुल स्कॉलरशिप यहाँ पे आना चाहते हैं, अंडर ग्रेड की बात कर रहे हैं, और दूसरे ऐसे हैं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं और वो फुल पेमेंट के साथ यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि वो कैसे इसको एक्सप्लोर करें या खुद से प्रोसीड करें, और किसी कंसल्टेंसी के बगैर अगर वो आगे इसको प्रोसीड करना चाहें वो कैसे करना। तो एक बात ध्यान में रखिए कि अगर आपको अपने फंड्स के साथ तालीम हासिल करना है तो फिर आपके लिए सिर्फ एक ही रुकावट है, और वो रुकावट ये है कि आपने अपने टैलेंट को अच्छे तरीके से यूनिवर्सिटी वालों के सामने पेश करना है, अपनी तालीमी इस्तेदाद को उनके सामने रखना है कि आप ये कुछ पाकिस्तान से कर चुके हैं, और करने के बाद ये कुछ आप सीख चुके हैं, ये आपने प्रोजेक्ट किया अपने हाई स्कूल लेवल पे, या अगर नहीं भी किया तो आपकी कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, तो वो भी काफ़ी यहाँ पे एक मस्बत चीज़ शुमार की जाती है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी मेरी तवज्जो दिलाई कि वो स्टूडेंट्स जो ये इस्तात रखते हैं कि वो खुद अपने वालिदैन की मदद से या किसी और सोर्स की बुनियाद पे वो खुद यहाँ पे पैसे पे करके पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी एक ही उनको काविश करनी पड़ेगी कि उनको अमूमन अंडर ग्रेड डिग्री के लिए एक टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर। जो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे उस टेस्ट के अगर अच्छे स्कोर आप ले लें, उस टेस्ट का नाम है SAT, उसको बाद लोग पाकिस्तान में SAT भी कहते हैं। और वही टेस्ट जब अमेरिका में बच्चे देते हैं, यहाँ के जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स देते हैं, तो उसका नाम ACT हो जाता है। यानी ACT टेस्ट या SAT टेस्ट एक ही तरह के दो टेस्ट हैं जो इंग्लिश और मैथ पे मबनी होते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से आपने अच्छा हाई स्कूल किया, अच्छे ग्रेड्स लिए, और उसके बाद अगर आप SAT टेस्ट भी कर लेते हैं और SAT टेस्ट के स्कोर के साथ आप यहाँ की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो आपके कामयाबी के इम्कानात
बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा हसन भाई, ये एक आखिरी सवाल, काफ़ी टाइम हमने आपका ले लिया कि आप स्पेसिफिकली मायामी यूनिवर्सिटी के हवाले से ये बताएं कि अगर अंडर ग्रेड यहाँ पे अप्रोच करना चाहता है फंडिंग के लिए या डायरेक्ट विदाउट फंडिंग, तो वो कैसे प्रोसीड करते हाँ जी, आपने मेरी यूनिवर्सिटी के हवाले से ही सवाल किया, तो इसका तो जवाब देने में मैं बहुत खुशी महसूस करूंगा। पहली बात तो ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स पे मबनी है, और हमारी यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा वेलकम करती है। और अगर मायामी के हवाले से कोई मालूमात चाहता हो तो वो ई लर्निंग ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म से मुझसे रब्ता कर सकता है और मैं उसको इसमें रहनुमाई फराहम कर सकता हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा वेलकम करती है और अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को पार्शियल स्कॉलरशिप भी देती है। तो यहाँ मायामी का मैं एक पॉजिटिव पॉइंट आपके सामने रखूंगा कि मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ कोई अंडर ग्रेड स्टूडेंट आए और उसको यूनिवर्सिटी कुछ ना दे। अगर वो स्टूडेंट टैलेंटेड है, उसने अच्छे स्कोर्स लिए हैं और वो SAT में भी अच्छा परफॉर्म करता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मायामी ज़रूर उसको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप देगी। काइंडली ये बात ध्यान में रखिए कि अमेरिका और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ जेन्युइन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा वेलकम करती हैं और वो नाहित दिल से ये चाहती हैं कि जेन्युइन स्टूडेंट्स यहाँ पर आएँ और तालीम के मौके हासिल करें, और ये चीज़ आपके लिए इंतहाई आसान होगी। तो मैं शकील भाई का भी एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये मौका फराहम कर रहे हैं कि मैं अपने व्यूअर्स की रहनुमाई कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपने हमें टाइम दिया और अभी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपके इंटरेस्ट के लिए मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि यहाँ पे मायामी यूनिवर्सिटी में इस वक्त फैकल्टी तकरीबन 900 प्लस फैकल्टी जो ऑक्सफोर्ड कैंपस के अंदर काम कर रही है, स्टूडेंट्स को तालीम दे रही है, और ओवरऑल तमाम कैंपसेस की अगर फैकल्टी को मिलाया जाए तो वो 1100 से ज़्यादा है। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स को देखें तो तकरीबन 19,000 प्लस स्टूडेंट्स ऑक्सफोर्ड कैंपस में तालीम हासिल कर रहे हैं, और ओवरऑल तमाम कैंपसेस को मिलाएं तो 24,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करें। वंदनावन खोलण यार ना वंदनावन ढोलण यार एक पावी ठाई वे एक पावी ठाई वे ढोलण यार ना वंदनावन ढोलण यार ना वंदनावन तंदा तंबूरा रगड़ दिया तारा तंदा तंबूरा रगड़ दिया तारा लूलू दे विच करन पुकारा लूलू दे विच करन पुकारा एक पावी ठाई वे एक पावी ठाई वे ढोलण यार ना वंदनावन ढोलण यार ना वंदनावन अपने वतन दिया ठंडियां छावां अपने वतन दिया ठंडियां छावां एक दूजे नाल सारियां सहावां एक दूजे नाल सारियां सहावां एक पावी ठाई वे एक पावी ठाई वे ढोलण यार ना वंदनावन ढोलण यार ना वंदनावन लोकी ते कमले लदी लदी जांदे लोकी ते कमले लदी लदी जांदे टूट जान यारियां
ایک آنٹی تھی ان کے 2 بچے تھے, ایک کا نام تھا اور ایک کا نام تھا. تو جب کلاتی آتا تھا تو ڈاکٹر کو گئی تو انہیں پوچھا کہ انہیں کہا کہ جب کلاتی آتا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے کلائیں تو مسئلہ حل ہو گیا.